Hello students, welcome to this new video. We are doing the chapter admission of a new partner, and as I told you earlier that when new partner is admitted into a partnership firm, there are so many types of calculation which are needed to be done, like how to calculate new profit sharing ratio, how to calculate sacrificing ratio, how accumulated profit and losses can be distributed, how the goodwill treatment is to be done, how revaluation of assets and liabilities is to be done, how the capital adjustment is to be done. So there are 5 or 6 types of calculation which are needed to be done at the time of admission of a new partner. Now in first video and second video, in first and second video, I told you that how the new profit sharing ratio is calculated. So now you must be aware that how new profit sharing ratio is to be calculated. There are 4 cases of finding out new profit sharing ratio, and in 2 videos we have discussed about these 4 cases. Now today we will do the second type of calculation which is needed to be done at the time of sacrificing ratio, at the time of admission of a new partner, and that is second type of treatment is calculation of sacrificing ratio. How the sacrificing ratio is to be calculated. Now first of all, what is the sacrificing ratio? Sacrificing ratio is the ratio in which existing partners surrender this share in favor of new partner. The formula of sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. Okay. Now let us discuss how sacrificing ratio is to be calculated. There are again 4 cases of finding out the sacrificing ratio. The first case, same case in which we have discussed at the time of finding out new profit sharing ratio. First case is when 2 partners are there in the business, like A and B, ratio is 3:2 and C is coming for 1/5 share. This is case number 1. This is same like which we discussed at the time of calculation of न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जब क्वेश्चन के अंदर ये ऐसा लिखा हो ए और बी 2 पार्टनर हैं, सी 1/5 के लिए आ रहा है, ये केस नंबर 1 है. यहाँ सेक्रीफाइसिंग निकालते वक्त भी केस नंबर 1 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते वक्त भी केस नंबर 1 ही है. तो इस तरफ का अगर कोई केस बनता है, उस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी ओल्ड रेशो. मतलब फर्स्ट केस में जो ओल्ड रेशो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है. ओल्ड रेशो क्या है? ए और बी का 3:2. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो विल आल्सो बी 3:2. तो बहुत इजी है ये फर्स्ट केस जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का. अगर उस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं होती. जो आपको दिया हुआ है ओल्ड रेशो वही सेक्रीफाइस रेशो रहता है. सेकेंड इज second case, and second case was there like in which new partner gets his share equally from old partners. तो इस केस में equal is the sacrifice. equal is the sacrifice. मतलब केस नंबर 2 में भी अगर आपको केस नंबर 2 दिया हुआ है जिसमें ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, सपोज ए और बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2 and C is coming for 1/5 share which he acquires equally from A and B. A and B, A B 2 पार्टनर है, 1/5 के लिए C आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर, और वो इक्वली अपना शेयर जो 1/5 इसका शेयर है ए और बी से ले रहा है. तो इक्वली सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि सेक्रीफाइस होता क्या है? वो रेशो जिसमें पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को अपना शेयर छोड़ते हैं, यहाँ इक्वल छोड़ रहे हैं, तो इक्वल इज द न्यू रेशो. कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तो इक्वल ही होगा रेशो. ओके, केस नंबर 2 भी पता चल गया. केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 आपको पता है क्या होता है? केस नंबर 3 जिसमें पुराने पार्टनर से नया पार्टनर अदर देन इक्वल किसी अदर रेशो में अपना शेयर लेता है. मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2, C is coming for 3/10 share
which he acquires from A and B in the ratio 1:2। ये जो फ्रैक्शन है 1:2 वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो इन सच टाइप क्वेश्चन इज विल बी द फ्रैक्शन, दैट इज इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज़ 1/2। मतलब थर्ड केस में जो फ्रैक्शन होती है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। केस नंबर 4 के बारे में आप जानते हैं, जिसमें नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया होता है। जब नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया होता है तो वो केस नंबर 4 है। उसमें ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया होता है और ओल्ड पार्टनर के शेयर के अलावा ओल्ड पार्टनर्स का सरेंडर भी दिया होता है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। उस केस में हमारे पास कोई भी शॉर्टकट नहीं होता कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकें। इस केस में हम पहले न्यू रेशो निकालते हैं और फिर जब हमारे पास न्यू रेशो आ जाता है तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। तो अगर हम देखा जाए 4 केसेस हैं, चारों केसेस में 3 केसेस में शॉर्टकट लग जाता है। पहले केस में ओल्ड रेशो इज़ द सेक्रीफाइस रेशो, सेकंड केस में इक्वल सेक्रीफाइसिंग रेशो रहता है, थर्ड केस में जिस फ्रैक्शन में न्यू पार्टनर अपना शेयर लेता है ओल्ड पार्टनर से वो फ्रैक्शन ही सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाता है। और फोर्थ केस में कोई शॉर्टकट नहीं है, पहले हमें न्यू रेशो निकालना पड़ता है। ओल्ड रेशो हमारे पास दिया होता है, न्यू रेशो हमें निकालना पड़ता है। जब हम न्यू रेशो निकाल लेते हैं तो फिर हम फार्मूला पुट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, फिर हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल जाता है। ओके, दिस वाज अबाउट द सेकंड ट्रीटमेंट, दैट वाज सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हम थर्ड ट्रीटमेंट करेंगे और थर्ड ट्रीटमेंट है हमारी, थर्ड ट्रीटमेंट है accumulated profits and losses ट्रीटमेंट। अब बच्चों, जब मान लीजिए ए और बी दो बिजनेसमैन हैं, उनका रेशियो है 3:2, सी इज़ कमिंग फॉर 1/5 शेयर। जब सी 1/5 के लिए आ जाएगा, तो जब 1/5 के लिए आ जाएगा तो उससे पहले, सी के आने से पहले ए और बी बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने कई तरह के रिज़र्व बना के रखे होंगे। जब उन्होंने कई रिज़र्व बना के रखे होंगे तो उनको उन रिज़र्व में सी को भी शेयर मिल जाएगा 1/5। इसलिए ए और बी क्या करते हैं, उन पुराने रिज़र्व्स को, उन पुराने प्रॉफिट्स को, जिनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, पिछले कई सालों के रिज़र्व या प्रॉफिट, उनको सी के आने से पहले आपस में बांट लेते हैं। आपस में बांटने के बाद ही सी की एडमिशन की जाती है। इसी तरह कई तरह के एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हो सकते हैं। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस को भी ए और बी को बांटना पड़ता है, नहीं तो सी प्रोटेस्ट करता है कि इस एक्यूमुलेटेड लॉस, जो आपका लॉस है, आपने बिज़नेस में इनकर किया है, उसको मैं नहीं लूँगा, इसलिए आप इस लॉस को बांट लीजिए। तो चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हों या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हों, नए पार्टनर की एडमिशन से पहले ओल्ड पार्टनर्स को वो अपने ओल्ड रेशो में बांटने पड़ते हैं। अब बात करते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बच्चे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन से होते हैं, कहाँ होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मीन द रिजर्व्स एंड अदर टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स। अगर हम देखा जाए तो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में ये हमें मिलते हैं। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में मिलेंगे। बैलेंस शीट की ये बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की ये रही, और यहाँ पर आपको ये मिलेंगे। किस नाम से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं रिजर्व फंड, रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंटीजेंट रिजर्व, कंटीजेंट रिजर्व, ये इनके नाम हो सकते हैं। और मिलते कहाँ हैं ये? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ओके,
बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अगर रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का या कंटीजेंट रिजर्व, इस तरह का कोई रिजर्व दिया होगा तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अब वही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो इसको पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। अब पुराने पार्टनर्स के कौन है यहाँ पर, ए और बी है। रेशो क्या है, 3:2। मान लीजिए रिजर्व फंड 1,00,000 रुपये है, इसको पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे। जब पुराने पार्टनर्स बांटेंगे तो उनकी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी मतलब क्रेडिट हो जाएगी, एंट्री होगी, ये रिजर्व फंड है, एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अमाउंट है 1,00,000, रेशो है ओल्ड रेशो क्या है, 3:2। 3:2 में 1,00,000 को बांटेंगे तो आएगा, ए को मिलेगा 60,000 और बी को मिलेगा 40,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओके, इसी तरह अगर रिजर्व होगा यहाँ तो हम लिखेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इसी तरह अगर जनरल रिजर्व होगा हम लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इसी तरह अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इसी तरह अगर कंटिंजेंट रिजर्व होगा हम लिखेंगे कंटिंजेंट रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होंगी और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डेबिट होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइबिलिटी में है, क्रेडिट बैलेंस है, इसको खत्म करना है तो डेबिट में चला जाएगा और कैपिटल्स क्रेडिट में चली जाएंगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, अब ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं। अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है और कई सालों से लॉस हमारा इकट्ठा हो गया है तो कई साल के इकट्ठे लॉस को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। मान लीजिए बैलेंस, ये मिलता कहाँ है, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस मिलते हैं हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जैसे लाइबिलिटी में हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मिलते थे यहाँ पर, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस मिलेंगे हमें एसेट्स में। पर किस नाम से होंगे, ये होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिखा होता है और कभी कभी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा होता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो दो ही एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं मेनली जो हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलते हैं। पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ओके, दो ही होते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके दिमाग में रेज कर रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में भी है, लाइबिलिटीज़ में भी है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ एक्यूमुलेटेड लॉसेज में, एसेट्स में भी है। तो बच्चों, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटीज़ में है तो वो आपका प्रॉफिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट्स में है तो वो लॉस होता है। ठीक है, इसलिए ये अलग अलग दोनों जगह आते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, कैपिटल से रिकवर किए जाएंगे, कैपिटल कम हो जाएंगी मतलब डेबिट हो जाएंगी, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस के नाम से है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, या सस्पेंस होगा तो आपने सस्पेंस अकाउंट लिखना है। मान लीजिए अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर 40,000 है, 40,000 है, तो 40,000 को आपने बांटना है। 40,000 है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का, तो सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। रेशो क्या है, ओल्ड रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो वही है 3:2, ये रही, इसी में बांटेंगे 3:2 को।
ये 24,000 और ये 16,000। ठीक है, नरेशन में लिखना है बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अगर बात करें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की, तो ये अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है आपका, ये आपका 2 लाख रुपए है, 2 लाख है। ये लॉस जब कवर करेंगे तो कैपिटल डेबिट होंगी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो पहले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का अमाउंट हम भर देंगे 2 लाख, 2 लाख भर दिया। अब इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देना है। ए का कितना लॉस होगा इसमें 3/5, क्योंकि रेशो क्या है ए और बी का 3:2 ये रेशो है। तो 2 लाख का 3/5 ए का है, 2 लाख का 2/5 बी का है। तो बन गया आपका ये 1,20,000 एंड 80,000। इसमें नरेशन लिखेंगे बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। तो बच्चों आज हमने सीखा कि न्यू प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो के भी 4 केस होते हैं, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के होते हैं। पहले केस में ओल्ड सेक्रीफाइस होता है, दूसरे केस में इक्वल ही सेक्रीफाइस रहता है, तीसरे केस में जो फ्रैक्शन होती है जिसमें नया पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से लेता है वो फ्रैक्शन ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। चौथे केस में कोई शॉर्टकट नहीं लगता। चौथे केस में हमें पहले न्यू रेशो निकालना पड़ता है और न्यू रेशो निकालने के बाद हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा देते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। उसके बाद हमने सीखा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में मिलते हैं, उनका नाम रिजर्व फंड, रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कंटीजेंट रिजर्व हो सकता है। जब इनको आप बांटेंगे तो एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड, या अगर रिजर्व है तो रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, कंटीजेंट रिजर्व के नाम से है तो कंटीजेंट रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर। जैसे ओल्ड पार्टनर ए बी है तो टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, ओल्ड रेशो में ये पैसा बन जाता है। अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होते हैं वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलते हैं। किस नाम से मिल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से मिल जाएगा आपको, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से मिलेगा। तो इनको जब बांटेंगे तो एंट्री होती है हमारी पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड लॉस। अगर एक्यूमुलेटेड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो हम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस के नाम से है तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओल्ड रेशो में इसको हम बांध देते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सीखा 2 ट्रीटमेंट्स आज, ट्रीटमेंट ऑफ sacrificing ratio and treatment of accumulated profits and losses. In next video we will discuss about the goodwill treatment and then revaluation of assets and liabilities treatment. Okay, till then, bye.